So we will go through the Vonthunen agricultural location theory. So again, as usual, I do talk on okay, why this particular topic is important. So having significance of that topic, or why we will go through that one, or you may say okay, why this topic has been added to your syllabus. Whether any kind of reason lies there, bilkul, I mean, reason is absolutely there. Because this one, if you go through your syllabus meticulously, it's been designed that none of the agricultural theory is there except the Vonthunen agricultural theory. But yesterday evening we had gone through that one. That one was what agricultural look. That was not agricultural locational theory. That was agricultural region. That is a classification of the agricultural region and agricultural activities. But the production, and when it comes to the what that is the locational theory for the agriculture, I would say. So this is the only theory is been mentioned in your syllabus. Like in industrial theory, there is Weber, there is Weber also there. That means there is also Law's theory also there. So three theories are there for the industries. But when it comes to the agriculture, this is the only and sole theory has been mentioned in your syllabus. That makes the significance of this particular lesson, or I would say the theory. Okay, why Vonthunen? ତେଣୁକରି ଯେହେତୁ this one is the only and the sole theory in the agricultural concept, that's why it's itself makes the importance of this particular thing. So as usual, है ना, तो that is, and agriculture ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, let's say green revolution ତମେ କଥା କହୁଛ, and we are talking about the present pattern of the agricultural location, or I would say the present pattern of agriculture, the land use pattern of agriculture. Okay, pattern, that means I would say pattern of agriculture and the land use. Okay, we will say the land use pattern as well. Land use pattern relate to the agriculture or the agro sector as well. So the present agricultural use of the land and the present agriculture pattern is completely different, or I would say that is in the line of Vonthunen agricultural model, which was presented by Vonthunen in 1783 to ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 1885 to different times ତାଙ୍କର ଆସିଛି, ତାକୁ modified ହେଇକି ଆସିଛି, and finally ଆମେ ଦେଖିବା okay, this theory Vonthunen agricultural theory used to be was created by the what farmers and amateur economist J.H. Vonthunen in 1783 to 1815, है ना. तो finally हम देखो 1826, but it was not translated to English until 1966. तो 1966 रो ट्रांसलेट हेबो, है ना. तापर तमरो ट्रांसलेट हेजबो इंग्लिश फॉर्म को आसीबो. जब यू होची एग्रीकल्चरल लोकेशन थ्योरी, द टॉपिक रो ना होची एग्रीकल्चरल लोकेशन थ्योरी. That means the topic ro meaning hochi where which crop will be grown. So the meaning of this topic is where and which crop will be grown. I mean the koti bhi kari pariba no. On the basis of market and profitability, certain crops, every crop has its own location and need to be cultivated there. That means this particular theory or this model will talk on where and which crops will be grown. Where and which. Okay, and how as well, or you may say the how. Where, which, and how crop will be grown. Okay, with respect to the land and market. ये होची जदि हम कहबा कोर ऑफ दिस थ्योरी होची को क्रॉप्स कोठी करिबा केमिति करिबा, हाउ, वेयर एंड व्हिच. दैट इज द मेन एसेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर थ्योरी. फॉर से जदि हम देखिबा, जदि तमे Vonthunen डायग्राम देखियो, तो Vonthunen डायग्राम टिके हमहु देखि दिस, कारण हमते शॉर्ट रे हमकु कवर करियर अछि एंड विथ एफिशिएंट मैनर. एमते नाही कि हमें शॉर्ट रो कवर करिया किछि बुझिबानी, सेमते किछि नै, efficient manner as well. Let's say this is the figure of, or one of the figure is been given by Vonthunen. हम देखिबा, here is the center of this particular one side को हमें स्टडी करियो, both side को स्टडी करियो नहीं. Let's say मु ए फिगर को तुमको दिखेबी. This black circle is the itself market, that is the city center or market.
when it comes to the city center, or you may say the this one is the market, and that to be the sole market, that to be the sole market. Then market चारि पाखरे हमें देखिवा this white or the grey color है ना, both side तुमको देखिए पड़ो, that is the market gardening and milk cultivation. For say when you let's say कटक रे जो माने city सी कटक रे रहुचो और BBSR रे रहुचो or any other city और राउरकेला वगैरह कोठी भी रहुचो, तुम देखियो city पाखरे सबुले परिबा चाष होता है ना, always that is the market gardening and milk or that is the dairy or itself the dairy. सहर पाखरे देखो परिबा चाष होथो, dairy थाए, market gardening ए सब होता है, then that is having the certain logic, and that logic we are getting from the Vonthunen locational theory है ना ये. Then comes to the firewood. This green color says the firewood. The green color denotes to the firewood and lumbering. Then comes your grain. Then comes your what that is the what no fallow and with fallow. And then comes the three field system, and then comes to the livestock ranching. So that means as we move from the market, the crop patterns and the land use pattern follows like this. Okay, crop pattern and the land use pattern follows like this. तो ये थ्योरी देथिले वॉन्थुनेन. वॉन्थुनेन कहिबा अनुसारे कि जदि गोटे मार्केट अछि, मार्केट पाखरे कोन रहइबो ना, ऑलवेज वेजिटेबल्स स्टॉक फार्मिंग विल बी देयर है ना. मार्केट पाखरे कोन रहइबो ना, मिल्क रहइबो, वेजिटेबल्स रहइबो, ये सब रहइबो. तापरे कोन रहइबो ना, फायरवुड रहइबो है ना. तापरे कोन रहइबो, टिके दूर आउ टिके दूर रे ग्रेन फार्मिंग देयर वुड बी. देन क्रॉप्स विथ नो फैलो कहले इंटेंसिव एग्रीकल्चर जाको हम कहजे. Intensive agriculture. This would be extensive. That would be extensive. Three field system or the extensive agriculture. Then comes to the livestock ranching or the grazing. तो ये गोटे फॉर्मेट देथिले वॉन्थुनेन. तो वॉन्थुनेन कहले कि एमिति एग्रीकल्चर हवा दरकार जदि तमे इफ यू आर ग्रोइंग this line, यदि ए लाइन को हमें एठी करिबा और we will exchange this line, that will make zero profit or that would not but that would not be a profitable agriculture. तेणु agriculture को यदि हमें profitable करिवार अछि, then you have to follow this model. Market पाखरे vegetables करिवो एमती जे मॉडल दिया जी, this would be the model to get the benefit or the profit. जदि तमे चाहो profit, then you have to follow this pattern. जो मनकर जगह पूरा मार्केट पाखरे अछि है ना, they must grow है ना कि हमें vegetables and either से माने milk वगैरह रखिवो. टिके दूर रे थले कोन हबो, तापर टिके दूर थले कोन हबो, ये गोटे मॉडल देइछन्ती से है ना, ये गोटे मॉडल देइछन्ती. ठीक अछि, होप यू आर गेटिंग मी. देन ये मॉडल को से कोन करिवो, हमें देखबा मॉडल को इंप्लीमेंट करिकि हमें वर्तमान टाइम रे देखिबा. अच्छा तापर हमें आसीबा बेसिक जेंस को आसीबा, कारण एटा एक्चुअली एमती पढिले कोन जल्दी हमें एफिशिएंटली कवर करबा. ये गोटे मॉडल देइछि. लेट्स से तुमको गोटे क्वेश्चन आसीबो, डू यू फील दैट वॉन्थुनेन मॉडल इज प्रेजेंटली वर्किंग? बिल्कुल I see, though I would not completely deny the fact the theory is not workable or the theory is not accepted or the theory is not impractical. Let it be any market in the world, the theory is applicable. Theory is applicable. तुमको केमिति तमे जदि देखिबो चाहे से कटक हो भुवनेश्वर हो आख पाखरे परिबा चाष होउची है ना, दैट मींस मार्केट गार्डनिंग एंड मिल्क आउ गाई गोरु रहउची बा जो माने मिल्क बर डेयरी प्रोडक्ट्स रहउची, दैट मींस दिस इज ट्रू फैक्ट. Then देखिबो this one is not applicable present time रे, because Vonthunen जेतेबेले theory देइथिला, that time there was no use of electricity, no use of natural gas, no use of cooking oil, that these things were not there. That is why firewood हमें जदि देखा, firewood was most needed for the cooking purposes. Nowadays we are having electricity, oven, electric चूल्हा कथा नहीं जाओ, the gas कथा नहीं जाओ, natural gas, all these things are nowadays we are having. So that's why we don't need this wood as a second zone. Now we wood को हमें पछकू कौन करिबा push करदवा, let it push to the distance away from the market because that would not going to resolve you. So ये टिके time अनुसार change है. Otherwise rest of the things is as it is, as he proposed or as he said, that this would be the model for the getting the benefit out of you, out of the agriculture. If you want to get the benefit from the agriculture, you have to follow the model. Okay. Green farming. Jodi tame dekhibo, as you move from the city, from the Bhubaneswar, from the Cuttack, any other city, as you move ahead, jete sahararu durku jauthibo dekhibo, धीरे धीरे agriculture जो होबो intensity कमी कमी जिवो, extensity of the agriculture will increase, and then animal ranching, livestock, that would be
पूरा तुम लास्ट को आसीଯିव सो प्रेजेंट डे रे भी यार वैलिडेशन अच्छी है ना एमती ना कि प्रेजेंट डे वैलिडेशन नहीं ओनली दिस वन इज एक्सेप्शन कि दिस वन हैज चेंज और द रेस्ट ऑफ द थिंग्स इज सिमिलर टू द proposed model of the Vonthunen. Hope this one is up to this. Is everyone fine with this? अच्छा ये समझते figure से तो acquainted है everyone or anyone is having doubt? You can also exchange the thought with me if anyone feels the constraint. Anyone? Or is it fine to all? Is it fine to all? Should I move ahead? Or okay, is it fine to you? Malti fine to you? Shall I move ahead? Okay. So these things that means আমি কইবা ইথিল ফিগার না comes to this তাহলে তুমি কইব কি স্যার ই কোন মন ইচ্ছা করে দেলে কি ফিগারটাକୁ जो Vonthunen ফিগারটা ড্র করি কইলে ই কোন মন ইচ্ছা করে দেলে but this one is a model and theory ତମାନେ ଜାଣିଛ theory ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁ that means it must be based on certain assumption ଏ କିଛି assumption ଉପରେ ବେସ୍ କରିବ ଏ ତ ମୁଁ ଫିଗର ବୁଝିବା ପାଇଁ ତମକୁ ଆଗରୁ କହିଦେଲି so that it would be easy for the discussion it must be based on theory means କିଛି assumption ଥିବ ଆଉ ଯଦି assumption ଅଛି ଏ କଣ ହେଇଯିବ ତମର it would be deductive it would be deductive ହେଇଯିବ plus ଯେତେବେଳେ ତମେ ଦେଖୁଛ Vonthunen is talking about the profit in agriculture ଏ କଣ କଥା କହୁଛି profit how agriculture would be profitable that means you are talking about the man must be rational man must be rational, man must be economic as well, and that denotes to the QR phase. That denotes to the beginning of the quantitative revolution phase. And Vonthunen theory is the beginning of the quantitative revolution. Genesis of the quantitative revolution lies on the Vonthunen models of agriculture. When I was going through the quantitative revolution, that time I also talked about that the genesis of the what that is the QR phase or the quantitative revolution lies in the Vonthunen model. Okay, so here also you can say or you can write like the genesis of the quantitative revolution or the quantitative revolution started with the, what I would say this model है ना तो ये कौन करिबो that means economic main कथा कहिबो rationality कथा कहिबो तो that means हमें केवल जो normative principle I would say the normative principle will be avoided as usual as that do or that is what do by the QR or that is does through the QR phase तो ये जिनस को भी हमें ध्यान रखा दरकार दैट मीन्स हमें कहबा ये कहाँ कहबा क्यूआर फेज बार जेनेसिस टाइम तेणु करिकी ये को प्रिंसिपल पॉजिटिविज्म प्रिंसिपल और द फिलोसफी सॉरी इट वुड बी द positivism philosophy will be applied to this theory which denotes the human beings as a rational economic and profitable person ତେଣୁ କରିକି ଏଥିରେ ଆସିବ ତ positivism philosophy will be applied to this theory theory will have certain assumption जो basis रे से करिवो तो assumption कोन कि जेमति कि लैंड रो फर्टिलिटी समान थिबो यूनिफॉर्म थिबो है ना लाइक ये ट्रेडिशनल सोसाइटी थिबो गोटिए प्रकार एग्रीकल्चर सिस्टम थिबो मार्केट गोटिए थिबा दरकार लाइक दिस वन इज वन मार्केट थिबा दरकार है ना आइसोट्रॉपिक प्लेन होइथिबा दरकार 40 जेमति लेट्स से farmer knowledge should be same farmer every farmer should know मतलब should be aware of the market scenario ये सब को transportation cost would be same and the medium of transportation would be uniform these are the some of the assumption I will also go through the or I will also navigate through the slide as well so assumption रहिबो कारण जेतेबेले theory जानुचो it would be some assumption based on certain assumption and data facts would be further to substantiate that one as well okay so ये फिगर तमे जानि देले एंड कहले कि एप्लीकेबिलिटी भी अछि ना कम्स टू द ये जो थ्योरी जेतरो से मॉडल जेतरो ड्रा करथिले और व्हेन दिस फिगर वाज गिवन और व्हेन इट वाज आउट इन द पब्लिक नॉलेज जेतरो आसिला ये थ्योरी कोन मन इच्छा ड्रा कर देले से ना किछि कैलकुलेशन हेछि हाथि एथि किछि कैलकुलेशन हेछि ना कैलकुलेशन कोन हमें ताकू भी देखिबा जाको हमें केवल क्यूआर फेज रो काहे कि जानि परबे ना फिगर से acquainted हो गेलो so for example मु कहबी कि up to 18 so 18 1783 to 1815 टाइम रे डेवलप हेतला मतलब तांकर जो टाइम तांकर जो लाइफ स्पान टाइम रे डेवलप हेतला आइसोलेटेड स्टेट कथा से कोहंती जोटा मु कहितली देयर विल बी ओनली सिटी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस रहिबो नाही
आइसोट्रॉपिक प्लेन हितवा दरकार है ना एठी लेखो तम आइसोलेटेड स्टेट सराउंडेड बाय अनअक्युपाइड विटनेस रो फर्टिलिटी समान रहिबो माउंटेन रहिबो नाही फ्लैट सरफेस रहिबो जोटा मु कहली कंडीशन फार्मर शुड बी माने स्टेट ऑफ ट्रांसपोर्ट विथ देयर मतलब आमी कहबा भाया द ऑक्स कार्ट ही परे लैंड ही परे डायरेक्टली टू द मार्केट रोड आम कह दैट मीन एमती ना कि तुमको सर डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रही सिंगल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रहिबो दीज आर द कंडीशन जो बेसिस रे से कोन करचंती अजम्पशन करिसंती कि लेट्स से मैं अजम्पशन को कहि दउची कि आइसोट्रॉपिक प्लेन income or I would say fertility would be same fertility रहिबो then uniform transportation system then it comes to economic mean then it would be transportation cost rises with distance or proportionately rises with this distance will rise with distance. So these are the some assumptions से देइछन्ति गोटिए मार्केट थिबो single market no outside influence to the market so these are the certain assumption is taking place then आसबो आमे देखिबा the basic assumption मु तुमको एबे देखि देउछि लाइक मु तुमको कहितली one market रहिबो agriculture hinterland only market will receive no other market except the city homogeneous surface जोटा कथा मु कहितली है ना hinterland हितवा दरकार बट समस्ते प्रॉफिट कथा कहबे इकोनॉमिक मेन हेबे transportation single mode of transportation that is the horse driven transportation cost with increase the distance एबी हमें पढ़ी देइछे single market होइबो knowledge of the farmer same रहिबो fertility of the soil same रहिबो these are the assumption is given by the whom Vonthunen but ये हला assumption ना हमें देखिबा प्रिंसिपल ऑफ थ्योरी कोन ये तो assumption देखले फिलोसफी कोन पॉजिटिविज्म प्रिंसिपल्स कोन प्रिंसिपल को टिके देखि देबा हमें प्रिंसिपल कोन देयर इज टू प्रिंसिपल्स ऑफ द थ्योरीज थ्योरी रो दीटा प्रिंसिपल्स अछि देखियो आगो को देखिया एठी त नाही आगो को थिबो दीटा प्रिंसिपल गोटे अछि इंटेंसिटी प्रिंसिपल गोटे अछि क्रॉप थ्योरी दीज आर द टू दैट इज द व्हाट प्रिंसिपल ऑफ द थ्योरी ये होछि प्रिंसिपल ऑफ थ्योरी प्रिंसिपल ऑफ थ्योरी फर्स्ट इंटेंसिटी एंड क्रॉप थ्योरी ये दीटा दैट मींस हमें कहबे एक तो होची philosophy then comes to principle of theory assumption of the theory okay ये सब हमें देखिबा तो लेट्स बिगिन तो हमें देखिबा ता पूर्व एलआर कांसेप्ट की हमें देखिबा एलआर कोन लोकेशनल रेंट एलआर इकोनॉमिक रेंट और जहाँ को हमें लोकेशनल रेंट कहो ओके और आई वुड से प्रॉफिट जदि तुम सेटा भी न बुझी परिबो एलआर इक्वल टू इकोनॉमिक रेंट और प्रॉफिट तो प्रॉफिट केमथि बारिबो यील्ड एलआर इक्वल टू y into m minus c minus ytd so ताले एलआर होची तमर प्रॉफिट बाय लोकेशनल रेंट y होची यील्ड m मतलब मार्केट प्राइस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यील्ड ट्रांसपोर्टेशन डिस्टेंस दीज आर द थिंग्स है ना तो आपको हमें बाहर करे अछि लेट्स से यील्ड होची तमरो 100 केजी कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस होची 100 टंका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होची 50 टंका दैट मींस हियर 50 so it's going to be okay that would be the 50 okay so that means that is the 5000 है ना ताको माइनस करबा लेट्स से डिस्टेंस कॉस्ट डिस्टेंस को नहीं के लिए मु 100 किलोमीटर एंड कॉस्ट को नहीं देली मु 1 रुपीस है ना डिस्टेंस हमें देखिए यील्ड अच्छा सॉरी यील्ड केते नहीं चाहिए हमें 1 ओके 100 then into distance नहीं गली पुनी 100 नहीं गली and for distance cost नहीं गली 1 rupees that means again it would be 100 so 100 into 100 तो बहुत ही जीवो that means it would be 10,000 ही जीवो है ना तो बहुत ही ज्यादा ही जीवो तो लॉस ही जीवो that means हम जदी देखिबा कि एलआर एठी कोन होची नेगेटिव हे जीवो तो इट वुड बी 5000 नेगेटिव हे जाउची एलआर तनो आपको मते कोन करिया पड़बो आपको कमे की 0 कर दियो है ना सो दा को 0 कर दवा सो दैट
प्रॉफिट रहिबो। तो एलआर एमिति बाहर दैट मीन्स भाव गोटे क्रॉप तुमको एटा किछि जदि न बुझा पड़ला आउ टिके डेप्थ आउ टिके बुझाई दउछि। फॉर एग्जांपल मु चाहूछि टोमाटो ग्रो करेबी आई हैव टू सेल इन कटक लेट्स से आई हैव टू सेल द टोमाटो इन कटक बड़ परिवा मार्केट रे सेल करियर अछि तमे बट यू वांट्स टू ग्रो द टोमाटो इन पुरी टोमाटो को पुरी रे ग्रो करिवो पुरी होची 50 किलोमीटर भाव पर किलोमीटर तुमको टोमाटो ट्रांसपोर्टेशन पई 50 टंका दवा पड़िवो दैट मीन्स 50 किलोमीटर को 50 टंका दब गोटे केजी टमाटो को भाव टोटल टमाटर अमाउंट होची 50 केजी दैट मीन्स आम कहबा 2500 rupees you have to spend for the transportation that means as the distance increases your transportation cost also increases तेणु तमे देखिबो जे मार्केट प्राइस केते अछि तेणु you will try to but that is the cultivated tomato close to the cutoff so that आमे कोन perishable item being a perishable item आउरी खत्म भी हिजबो तेणु करी तमे चाहबो कि टमाटो पाखरे हो so that मोर transportation cost कमी जिवो and being a perishable item it will also मतलब the farmer would be in loser side तेणु कोन करिबा ना पाखा पाखी रे चाष करिबा जेमति कि कंदरपुर जेमति कि नराज हे गला ये सब आखपाख रिजन रे तुमर चाष हम परिबा सो दैट डिस्टेंस कमी जिवो से आनिकी कटक रे बिकी दे इजीली पळे जाई परिबो ट्रांसपोर्टेशन कमी जिवो कॉस्ट एंड रहइबो तार पेरिसेबल बीइंग ए पेरिसेबल आइटम पेरिस्ट भी हबो नाही सो दैट इज व्हाई सो बोले हमें कहू बा एग्रीकल्चर बा तुमर वेजिटेबल वुड बी ऑलवेज ग्रोन टू द क्लोज टू द मार्केट और ये एलआर फार्मूला हैला सैया जो पर्यंत प्रॉफिट मिलिबो सेही पर्यंत रहइबो जेतो डिस्टेंस बढ़िबो प्रॉफिट कमी जिवो एंड दैट इज व्हाई फार्मूला इज देयर फार्मूला इज फाइन टू ऑल ना काकू बुझा पड़िबनी तो दिस फार्मूला विल बी अप्लाइड ये तुमको फार्मूला जाको हमें कहूचे L इक्वल टू है ना दैट इज द y into m minus c minus ytt तो ये तुमको मन पके पड़े दैट मींस हम यूज करूचे कोन वी आर यूजिंग दैट इज द व्हाट मैथमेटिक्स और यू आर यूजिंग रीजनिंग और यू आर यूजिंग डेटा बा तमे हम कहबा स्टैटिस्टिक्स यूज करूचो दैट इज व्हाई क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन फेज ने आसीबो बिकॉज़ यू आर यूजिंग क्वांट और आई वुड से मैथमेटिक्स रीजन बा तमे जहा कहि परिबो है ना ये हमें कोड यूज करूचे ज्योग्राफी रे तो ज्योग्राफी को क्वांटिफाइड करा जाउची बाय यूजिंग दिस टूल्स तेणु करी ये क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन फेज रे जिवो now this comes to the principles दीटा प्रिंसिपल्स रे करा जिवो गोटे होची इंटेंसिटी गोटे होची क्रॉप थ्योरी आगे तो इंटेंस हमें देखिबा कि इंटेंसिटी कोन इंटेंसिटी रो अर्थ होची व्हेन ए से इंटेंसिव फार्मिंग एक्सटेंसिव फार्मिंग दी प्रकार फार्मिंग हुए इंटेंसिव फार्मिंग कहले लेबर अधिक खर्च होची इन्वेस्टमेंट मोर इन्वेस्टमेंट टू दैट पर्टिकुलर प्रोडक्शन को है ना जाको हमें को इन्वेस्टमेंट अधिक है ना इन्वेस्टमेंट हमें जतो गोटेला हमें एक्सटेंसिव गोटेला एक्सटेंसिव करू एक्सटेंसिव कल्टीवेशन जो थ्रा में फर्टिलाइजर कम यूज करिबू लेबर कम यूज करिबू दैट मींस कॉस्ट प्रोडक्शन लेस थाए और लीस्ट थाए बट एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर इंटेंसिव एग्रीकल्चर कोन माने वर्ष सारा जमी की यूज होथबो फर्टिलाइजर अधिक यूज होबो पेस्टिसाइड अधिक यूज होबो वीडिसाइड अधिक यूज होबो मशीन अधिक यूज होबो एई भले एग्रीकल्चर को कहा जाय इंटेंसिव एग्रीकल्चर एक्सटेंसिव कहले जोठी हमें कम खर्च करू माना एबे हमें देखिबा जस्ट इमेजिन करो तुमको दीटा चॉइस मु देबी लेट्स से दिस वन इज ए मार्केट भंथुनेन कहिची है ना मु तुमको एग्जांपल देखि बुझौची ये होची गोटे मार्केट नाउ आई वांट्स टू ग्रो द क्रॉप्स रो इंटेंसिटी लेट्स से तुमको कहा जबो let's say crop A you are giving the crop B two choices I have given A is intensive and B is extensive crop where I have to grow the two crops I am giving the choice whether I will put B here or I will put A here or I will put A here or I will put B here in terms of the intensity according to Vonthunen the crop A must be grown to the close to the market because of more intense because of intensity अधिक तेणु करके मार्केट पाखरे ग्रो हबो बट बी रो जेतु एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर बी शुड बी अवे फ्रॉम द मार्केट तुमको सारा रीजन कोन रीजन मु सिंपल बुझे दोची तापर फिगर देखेबी रीजन होची ना ए रो जेतु कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अधिक तेणु आर मार्केट प्राइस भी अधिक हवा दरकार नहले हबो नाही भाबो आपण बणी हमें कंडीशन पुट करबा लेट्स से बी गोटे क्रॉप जार मार्केट प्राइस होची 50 टंका ओके ए गोटे क्रॉप जार मार्केट प्राइस होची 70 रुपीस ओके ठीक अछि एमती हम कर परबा और सेम भी कर परबा और लेट्स से 50-50 भी कर दिए तमे
लेट्स से 50 रुपीज कर दियो सेम भी कर दे पारो तुम 50 रुपीज भी कर दबा जदि मु दीटार कॉस्ट ऑफ आमे मार्केट प्राइस करबी मु 50 50 ए रो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अधिक इंटेंसिव एग्रीकल्चर होची ताले जदि मु ए को बी जगह रे ग्रो करिबी और डिस्टेंस रे ग्रो करिबी मार्केट को से जेतरो नै कि आसी कि बिकी कि जीवो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एते लागि जीवो जे तार लॉस हबो है ना तार लॉस हबो तेणु करके जदि आमर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आम जाने बी रो कम जेहेतु बी रो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम जदि मु दूर रे भी ताको ग्रो करूची ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जदि भी से दउची डिस्पाइट द फैक्ट तार प्रॉफिट रहिबो कारण से इन्वेस्टमेंट कम करूची प्रोडक्शन रे जदि भाबा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तार 20 टंका डिस्टेंस रे से खर्च करिवो 10 टंका फिर भी से रखिवो केते 20 टंका लाभ रखिवो किंतु जदि मु ए केस रे देखिबी ए रो इंटेंसिव जदि से तार 30 टंका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 10 टंका हबो तार ट्रांसपोर्टेशन लाभ रहिबो 10 टंका है ना एबे जदि मु देखिबी तेणु करिकी जेहेतु आर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अधिक तेणु आपको मार्केट पाखरे रखिबा मार्केट पाखरे रखिले जो 10 टंका से कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दउतला सेटा तब नहीं आर प्रॉफिट भी 20 टंका हिजबो तार प्रॉफिट भी 20 टंका आर प्रॉफिट भी 20 टंका ताले तुम कहो सर ताले आमे ए को रखिबा ए तो लॉस होबनी जदि मु ए को बी जगह रे पुट करूची लॉस होबनी जे बट तमरो रेट ऑफ प्रॉफिट कमी जिवो जदि तमे गोटे फार्मर दीटा क्रॉप तमे चाष करबो एका एमते कि दीटा अलग अलग प्लेयर ताले तमे देखुछ जदि मु बी को ए पाखु आणुची ए को बी पाखु नउची मोर ओवरऑल प्रॉफिट कमी जिवो तेणु करी बेटर ए को मु मार्केट पाखर ग्रो करबी बी को दूर रे करबी ना एटा बुझा पड़बनी काहाकू ना बुझा पड़बनी काहाकू अरे कहिते दियो किछि टिके टेक्निकल अछि बट तुम बुझी पारिबो इंटेंसिव थ्योरी हैला ये होची इंटेंसिव थ्योरी लेट मी गो थ्रू द फिगर शो मी द फिगर ना ये देखि पारिबो तमे ये होची इंटेंसिव मॉडल है ना ये गोटे इंटेंसिव क्रॉप मॉडल दिया है तुमको ओके फॉर एग्जांपल देखो इंटेंसिव मॉडल कारण ऑफ वॉन्थुनेन है ना तुम जानछो as we move from the market the transportation cost will increase the intensive agriculture is most suitable near to the center of the market कौन पाई because transportation cost and intensity हमें केवल जेहेतु मार्केट पाखरे रहले तुमको फरक पड़िबो नाही फॉर एग्जांपल देखो सेठी दीटा क्रॉप नै छंती है ना एक मिनट यार yes now आमे देखिबा इंटेंसिटी मॉडल इन द इंटेंसिटी मॉडल तो ए एरिया here is the market so close to market there would be intensive agriculture and away from the market there would be extensive agriculture है ना जो फॉर्मेट मु तुमको दिखेली है ना नहीं परिबो एटा एक मिनट ओके तार फिगर दिया ही नहीं बट सही फिगर मु तुमको बुझाई दउची गोटे फिगर ए फिगर ही तुमको बुझाई देबो हां हियर सो मु जेमती कहली लेट्स से दीटा क्रॉप्स को नबा तो क्रॉप इंटेंसिटी से कहूची कि इंटेंसिटी हेले कोन हबो as the intent as we go away from the market the extensiveness of the agriculture will increase as we move close to the market the intensity will be increase so that ame कहबा lr would be more to the crop a and lr would be less to the crop b कारण मु तुमको रीजन देखेली कि ए रो जदी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अधिक है ना एंड तार टोटल बल्की भी ये भी कोन अधिक प्रोडक्शन भी होची कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी अधिक प्रोडक्शन भी अधिक होची भाबो ए गोटे ए हैला मु लिखली लेट्स से राइस कथा मु कहली ए होची राइस बी होची तमरो हमें कोन करबा आपन आउ किछ नै जो लेट्स से व्हीट कथा मु कहली व्हीट ठीक अछि और व्हीट कथा नै गला तो दैट मीन्स हमें देखिबा राइस रो प्रोडक्शन जो टोटल अमाउंट अधिक प्लस एथरे तुमको अधिक सारा औषध लेबर लागुची है ना दैट मीन्स इंटेंसिटी होची intensity would be more okay as the intensity is more production that means जो तमरो yield अछि yield भी अधिक हबो लेट्स से yield होची 100 क्विंटल से जाउची तो 100 क्विंटल को जेतरा हम 10 किलोमीटर आनीबा तो 100 into 10 ये रहबो तमरो टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ये रहबो टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सॉरी 1 2 3 4
1 2 3 4 so that would be the cost of transportation रहिबो तेणु करी cost of transportation को जदि minimize करेर अछि तो मते that means I will grow the rice close to the market so that जो तमरो distance 10 थिला ताको हमें कोन करबा remove कर दे परिबा and the transportation cost जो per quintal लागुतला 10 rupees ताको भी हमें remove कर देले so that profit or rate of profit would be more rather than it can be grown here ये रहबो तमरो intensity of the models or intensity models now comes to the crop models तापरे आसबा ए रोची तो हमें दीटा प्रिंसिपल हमें पढ़िबा गोटे हला इंटेंसिटी गोटे हला क्रॉप थ्योरी है इंटेंसिटी रे हम देखिबले ना कम्स टू क्रॉप थ्योरी बट क्रॉप थ्योरी रे हमको केस 1 केस 2 नवा पड़िबो फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू द क्रॉप थ्योरी there would be variable land use with distance है ना डिस्टेंस होने जो केस 1 से कहछि कि देखो क्रॉप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट प्रत्येक क्रॉप टू क्रॉप प्रोडक्शन कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट and yield they will determine कि which crop will be grown जदि दी सेम हम देखिसे दीटा क्रॉप जहार इंटेंसिटी अधिक से मार्केट पाखरे रहिबो आउ जदि हमें खाली क्रॉप थ्योरी देखबा कि which crop would be grown where बट हमें इंटेंसिटी कथा कहूनी ताले ए केस रे कोन हबो ना टू क्रॉप्स नेछि जेंति पी क्यू नेछि हैव द सेम प्रोडक्शन कॉस्ट लेट्स से सेम प्रोडक्शन कॉस्ट हमें 50 and 50 ने गेले सेम दैट इज द प्रोडक्शन कॉस्ट हमें ने गेले and yield per unit yield like 100 and 100 हेगला भाबो दीटा क्रॉप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम अछि yield भी सेम अछि the crop theory to be understood by taking the two cases yield and cost of production देखियो when two crops is there में देखिवा yield that is same cost of production and yield but having different transportation cost and market price but एमान करो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वैरी करबा लेट्स से ए होची क्रॉप ए क्रॉप बी क्रॉप ए रो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मु मोर कर देली आर कर देली लेस कारण तुमको सर मोर कोन पे यारो ये कुड बी पेरिसेबल इट कुड बी ड्यूरेबल प्रोडक्ट है पारे तो दीटा क्रॉप्स को मु नेली जदी मु देखली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम अछि यील्ड सेम अछि बट खाली डिफरेंस कोन ना हमरो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन and हमें देखिबा मार्केट प्राइस है ना that is the एक मिनट that would the market price so these two things varies करूची that means transportation cost and market price these two things vary करूची ताले ताले हमें ए केस रे को क्रॉप टा कोठी करिबा that means जहार ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अधिक ताकू ही मार्केट पाखरे करिबा ओके तुमको सर कोन पे दी जंग तो सेम किंतु तुम देखो ना भाबो ये सिंगल फार्मर चाष करूची दीटा क्रॉप्स जदि से जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जार अधिक ताकू जदि मार्केट पाखे रखिबा ताले से अधिक प्रॉफिट दबो दूर को नेले प्रॉफिट कमी जिवो दूर को नेले प्रॉफिट तो हबो किंतु 1 रुपीस जो उठी थिला एठी 10 रुपीस प्रॉफिट दबो बट जार ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम से दूर को गले फिर भी प्रॉफिट दबो दैट इज व्हाई जार ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अधिक रहइबो जदि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम अछि यील्ड सेम अछि ताले जार ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम ताकू दूर को नै जिबा जार अधिक ताकू मार्केट पाखो को नै आसीबा ना बुझा पड़िबनी कना रेट ऑफ प्रॉफिट कमी जिवो प्रॉफिट हबो बट रेट ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट विल रिड्यूस सेति पई तमे कहीं भाबुचो कि दीटा फार्मर बोली गोटे फार्मर दीटा चाष करूची दीटा चॉइस अछि ताकू so that is why that would be the changes that is the case number 1 here you can see the case number 1 figure तो आर होची ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अधिक सेति पई मार्केट पाखरे आर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होची लेस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट but cost of production would be same yield would be same then case 2 रेटिनिची x and y same cost of same production रहिबो ट्रांसपोर्टेशन भी कॉस्ट सेम रहिबो तले एठी वैरी कोन करिवो ना एठी वैरीड करिवो but different market price and yield per unit तले एठी कोन वैरी करिवो कंडीशन चेंज हो गेला एठी yield वैरी करिवो प्राइस वैरी करिवो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट yield I mean production को सेम रखी जे ना x has the higher yield and lower market price जहार yield अधिक lower price market price will be grown to the close to the market this is very important to understand again I repeat kana मो जानछि बहुत लोगन को बुझा पड़िबो नाही जोठी न बुझा पड़ो तुरंत मते पचारबो एठी कंडीशन चेंज हो गेला सो गेला x and y दीटा क्रॉप्स जहार कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होची सेम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होची सेम बट yield
yield and market price differ करूची जार yield अधिक लेट्स से मु x नहीं जार x रो से कहूची हायर yield अर्थ कोन इंटेंसिव दैट मींस मु तुमको कोन ये इंटेंसिव हे जिवो और लोअर yield कहले ये एक्सटेंसिव हे जिवो लोअर yield ओके यदि हायर yield है ना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सेम अछि सेम प्रोडक्शन कॉस्ट अछि यदि yield अधिक अछि ताले से कोन कहूची मार्केट प्राइस वेरी करूची जार मार्केट प्राइस कम ताकू यदि मु आउरी दूर को नहीं जीवी आउरी लॉस हबो है ना प्लस yield अधिक yield जेहेतु अधिक टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ी जीवो मु रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कोन टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कोन आइ जीवो तमरो बढ़ी जीवो तेनु इट बेटर रहइबो कि x को हमें मार्केट पाखरे करबा y को हमें कोन करबा that is y will be closer to the market than x है ना x तो हो ना एक मिनट हाँ x एक मिनट ये कौन हाँ ठीक अच्छे राइट मुझे लेर किसी भूल भाल कहते ना कौन ठीक अच्छे x would be higher that is higher yield and lower market price will be grown close to the market than y है ना कारण तुमको बार रीजन कौन रीजन हो जेहेतु yield अधिक अच्छी और मार्केट प्राइस कम अच्छी जदि हमको दूर को नहीं जाऊे टोटल कॉस्ट बढ़ी जीवो तुम बेटे ताको मार्केट पाख रखिदेबा ये थिला तुमर क्रॉप थ्योरी आउ किछि नहीं बस तापर फिगर आसीबो फिगर तो ऑलरेडी पढ़ी दीजिए तेणुकर यही बेसिस रे से कौन कले देख जो मार्केट गार्डनिंग को हमें प्रूफ कर मार्केट गार्डनिंग होची इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेली लगे पड़े आज सार दियो काली पानी दियो काली घास बाछ काली अमुक कर परिया चाष हेले तो या हबो ना तो सब बेले लोक लागि रहबो ताले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कोन हबो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अधिक रहइबो प्रोडक्शन भी अधिक हबो तेणु मार्केट पाकर रहइबो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को एलिमिनेट करबा प्लस नेचर ऑफ द गुड्स है ना तेणुकर केमती डिजाइन कराई जोन सब को है ना तो मार्केट पाखरे रहइबो हाई यील्ड पेरिसेबल नेचर रहइबो तेणु मार्केट पाखरे रहइबो सुइटेबल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम रहइबो सेकंड जोन रहइबो वुड एंड लंबरिंग कारण से टाइम रे मु तुमको कहथि दैट टाइम इलेक्ट्रिसिटी वगैरह किछि नथला तेणु करी मार्केट पाखरे फायरवुड ता डिमांड अधिक थिला सेते पई सेकंड जोन रे हम फायरवुड को रखिथिले थर्ड जोन रे ग्रेन करथिले है ना नो फैलो अर्थ जगह को खाली दबा नाही माने सपोज मो पाखरे एते गोटे लैंड अछि एते एरिया को मु छाडी देली बाकी एरिया रे चाष कली तो ये जो लैंड को कहा फैलो जाको कहा फैलो लैंड तो फैलो दबो नहीं दैट मींस इंटेंसिव एग्रीकल्चर राई इज वन ऑफ द मोस्ट मार्केट डिमांडेड क्रॉप जानछो यूरोपियन मार्केट रे देन आसबो विथ फैलो एटी आसबो विथ फैलो है ना 14% फैलो ताले फैलोनेस जेते बढ़ुची एक्सटेंसिव ऑफ एग्रीकल्चर सेते बढ़िबो देन आसबो थ्री फील्ड सिस्टम थ्री फील्ड रो वन थर्ड रहइबो तमरो कोन वन थर्ड फॉर लाइफ स्टॉक वन फॉर द पास्चर वन थर्ड फॉर द फैलो तापर आसबो लास्ट आसबो लाइफ स्टॉक रैंचिंग खत्म ये थिला वॉन्थुनेन मॉडल ओके तापर ताको मॉडिफाई कर देबो है ना मॉडिफाई करी कोन करबो कहबे ना एमिति भी तो हे पारे ना गोटी मार्केट कथा कहतलो जन क्रिटिसाइज करबे कि आपण खाली कहउछन गोटी मार्केट दीटा मार्केट भी थाई पारे आ गोटे मार्केट को ऐड करे एला मॉडिफाइड फिगर थांस माने कहबो दिस वन इज मॉडिफाइड फिगर दिस वन इज ओरिजिनल ये ओरिजिनल फिगर दिस वन इज मॉडिफाइड अर्थात न्यू फिगर तेणु दीटा फिगर 1 एंड फिगर 2 तो तापर जेतर किछि लेको क्रिटिसाइज कले वॉन्थुनेन को कले आपण कहउछन्ते आइसोट्रोपिक प्लेन अरे भाई आइसोट्रोपिक न ही पारे से कले ठीक अछि जदि आइसोट्रोपिक हबनी मु गोटे रिवर ऐड कर देली ये रहला गोटे रिवर और स्ट्रीम ऐड कली है ना एक मिनट so it would be what यदि हमका गोटे रिवर ऐड कर देले देन आउ कोन लेट्स अ स्मॉल टाउन गोटे ऐड कर देले मॉडिफाइड हो गला एबे है ना समस्त कहले गोटे मार्केट केमिति हो दीटा मार्केट थाई पारे क्लाउड ठीक अछि हम ऐड कर देले ऐड करी के एबे कोन हैला ना ऐड कला परे रिवर टाइम के फ्लो करछि ओते स्ट्रीम ताले रिवर पाखरे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम रहिबो ना ऑल द जो माने सर्कुलर थिले ना द ऑल वुड बी इलोंगेटेड नाउ ऑल वुड बी इलोंगेटेड काना मार्केट देखियो रोड साइड रे मार्केट सोले इलोंगेटेड थाए
कारण चारिआडे तो रोड समान नथिबो ना एठी अज्यूम करूथले ट्रांसपोर्टेशन इक्वल 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 भाई ट्रांसपोर्टेशन इक्वल न होई परे तेणु मार्केट सर्कुलर केमती हेबो मार्केट वुड बी इलोंगेटेड है ना तेणु एठी सब इलोंगेटेड शेप हो जाइछि होप यू आर गेटिंग द फिगर फिगर को जानि परिबो एबे है ना तेणु करके ये रहबो बाकी आज यूजुअल तमरो सेम रहबो बस टिके इलोंगेटेड हेजबो बाकी सेम रहबो आज यूजुअल हां आर एठी आउ गोटे सर्कल देखा जबो एमती इलोंगेटेड मार्केट आउ गोटे देखा जबो आर जेमती आ दीटा कोठी गोटे इंटरेक्शन करिवो तो ये ओवरऑल थिला तमरो वॉन्थुनेन थ्योरी है ना ये देखि पारो ओरिजिनल वन एंड दिस वन इज द मॉडिफाइड वन इलोंगेटेड हे जाइछि ये लाइन दिस आर द इलोंगेटेड हे जाइछि है ना इलोंगेटेड व्हाई कारण ट्रांसपोर्टेशन टा इलोंगेटेड अछि बुझ परछो तो ये रहबो तमरो वॉन्थुनेन मॉडल कार किसी डाउट अछि कहि दियो जार भी डाउट अछि को कोठी भी डाउट अछि जदी केस 1 ना केस 2 कहबी कोटा को केस 1 केस 2 आउथरे कहू छला हो 2 टा ओके ठीक अछि केस 1 आउथरे कहि दे 2 भी कहि दउछि केस 1 से कहूछि को क्रॉप कोठी करबा में इंटेंसिटी ऊपर नो एठी एठी इंटेंसिटी इज नॉट कैलकुलेटेड अदर फैक्टर्स ना से कहूछि देदी हम नबा पी एंड क्यू टू क्रॉप्स नले जारो सेम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड यील्ड रहला बट ट्रांसपोर्टेशन जदि हमें देखिबा बट द थिंग्स दैट विल वेरी हियर दैट हमें कोन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मार्केट प्राइस वेरी करिवो है ना भाबो P is costlier to the transportation cost has higher market price P होची तार cost of transportation अधिक किंतु market price भी अधिक भाबो एटा गोटे market M लिखि देली एटा होची तमरो field जोठी चाष करिबा तार ना देली P P रो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हाई Q P रो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 10 टंका P रो होची 5 टंका डिस्टेंस मु सेम नै गेली 10 किलोमीटर these are the rupees in terms of per kilometer transportation cost market price एमती MP market price नहीं जिबा for say P पई नहीं गली मु 100 rupees Q पई नहीं गली मु 80 rupees ठीक अछि भाबो ताले मार्केट प्राइस भी केना वेरी करिवो अधिक रहइबो ताले जति मु P हेला P को जति मु 80 ग्रो करू छै ना ताले कोन हबो देखबा ताले 100 टंका ताले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो सेम रहबो लेट्स से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तुम 10 टंका नहीं जाओ ताले ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट केते दबो तुम 10 टंका देलो ताले केते टंका गला तमरो 20 टंका ताले लाभ केते पाइलो तुम 80 टंका ठीक अछि लेट्स से आमे देन क्यू पाखु को आसबा क्यू रो मु कहबी मार्केट प्राइस 80 टंका बट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होची 5 टंका किंतु बाकी तो सेम रहबो 10 तो 100 प्रोडक्शन तो सेम रहबो ताले ये केते टंका आरो दबो दैट मींस ये -5 ताले 75 रहइबो ताले केते अगेन करूची 75 है ना 75 करूची आउ अच्छा रो आपको डिस्टेंस को नबा ना कि हां एठी को केते माइनस करू 20 ना कि 20 कोन पे कोली मु 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर रो डिस्टेंस हेबो लेट्स से 10 रुपीस और प्लस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 10 नहीं कि हो ठीक अछि दैट मींस ए दिटा ताले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एठी भी 10 नबा काना सेम रहइबो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 15 कोली ताले केते रहइबो तमरो 65 है ना इट वुड बी 65 ओके ताले अच्छा आमे देखिबा ताले 65 को एठी वेरिएशन केते 15 एठी वेरिएशन केते 20 ना बुझा पड़िबो नै एटा एबे बुझा पड़िबो ना कोन कोजो बुझा पड़िबो ताले वेरी ताले एबे देखो रेट ऑफ चेंज कार अधिक रेट ऑफ चेंज आर अधिक मतलब रेट ऑफ लॉस अधिक रेट मु कोची पर रेट ऑफ लॉस अधिक कानी यार 20 डिफरेंस आर 15 डिफरेंस ताले परसेंटेज वाइज तो आर अधिक लॉस होची तनो बेटर हमें P को मार्केट पाखु को लिखवा कारण आर लॉस रो रेट कम आर लॉस रो रेट अधिक तेनो गोटिए फार्मर केबे चाहेबनी मोर लॉस तो ठीक अछि जति एई क्रॉप टाको एठी के नउची आपको एठी काणुची मोर जति टोटल ताले मोर टोटल बेनिफिट रे पॉजिटिव आसुची तेनो करी से कहू आपको ताले P मस्ट बी ग्रोन टू द मार्केट Q को दूर को नै जवा कना ऑलरेडी तारो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कोन अछि कम अछि ना बुझा पड़िबनी केस 2 एबे आसीबा ना केस 2 रे वेरिएबल्स जो अछि ताको वेरिएबल्स को चेंज कर दवा फॉर एग्जांपल हियर
we will change it is production cost रहिबो transportation cost same रहिबो but yield ଆଉ market price टा vary करिवो market price and yield टा vary करिवो एठी चेंज हे गेला तो से कहूची जदि x हायर yield अछि x पाखरे yield अधिक and lower market price कम अछि it must be grown to the market यार रीजन कोन हम देखबा अगेन नबा लेट्स से x दीटा को हम गोटे जगह नहीं देखबा एंड y दीटा को आगे गोटे जगह नहीं देखबा भाबो से कहूची ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट सेम मु दीटा को 10 रखितले 10 रुपीस ना yield जदी तमरो से कहूची x जदी yield करूची 100 क्विंटल y yield करूची 50 क्विंटल फॉर से 50 क्विंटल्स करूची कने वेरी करिवो मार्केट प्राइस आर अछि 100 टंका आर पर केजी आर अछि लेट्स से हम कहबा 80 rupees per kg this would be per kg 80 rupees रहिबो एबे देखो जदि मु x रो टोटल वॉल्यूम देखो मु कहूची वॉल्यूम कथा जो वॉल्यूम ऑफ एग्रीकल्चर अधिक मतलब प्रोड्यूस सॉरी इट वुड बी प्रोड्यूस वॉल्यूम ऑफ प्रोड्यूस इज मोर जतले वॉल्यूम ऑफ प्रोड्यूस अधिक तले टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अधिक हबो कोन कहली मु टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कारण ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो यूनिफॉर्म समान रखाई छी बट ये जेते बेले 100 क्विंटल नै कि जीवो जे 100 क्विंटल इनटू 1 रुपी भी ट्रांसपोर्टेशन रो खर्च करूची और 10 रुपीस ताले हे जोची तुमको 1000 टंका से दवा पड़े ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बट तारो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देखबा में 80 इनटू 10 800 टंका से दउची किंतु ये 1000 टंका खर्च करिवो से 800 टंका ट्रांसपोर्टेशन रो खर्च करिवो कोन पई एठी क्वांटिटी जोगु एठी रेट जोगु नुहो तेनु करी कि बेटर मु x को एठी ग्रो करिवि सो दैट 200 रुपीस आउरी मोरो मु कहियो एठी 1000 रुपीस सेव करबी 1000 तो दोउते ना सेव करिवि 800 टंका जाऊ किंतु 1000 टंका मोर सेविंग हबो एपटे तो ओवरऑल मोरो बेनिफिट रहिबो ना बुझा पड़बनी एबे बुझा पड़िबो है ना अदरवाइज लॉस हो जिवो तेनो ओवरऑल देखिबो तमे ये रहिबो पूरा भंथुनेन एंड इवनिंग रे जे में देखिबा कोन इवनिंग रे देखिबा तुमरो वेबर इंडस्ट्रियल लोकेशन